Hello children, welcome to our today's video. How do we know? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? Administration produces records. One important source in the official records of British administrations. The British believed that the act of writing was important. Every instructions, plan, policies, decisions, agreement, investigations had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. These convictions produced an administrative culture of memos, notings and reports. प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना बहुत ज़रूरी था। ऐसा करने के लिए चीज़ों की अच्छी तरह से अध्ययन भी होनी थी और उन पर वाद विवाद भी किया जाना था। इस समझदारी के कारण ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन जैसी चीज़ों पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हो गई। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. So they set up record rooms attached to all administrative institutions. The village Tahsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts, all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. कहने का अर्थ है, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी संस्थाएं भी बनाए गए। Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and reports that district officials prepared, or the instructions and directives that were sent by officials at the top of provincial administrators. 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department. 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे बच्चों जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। Next topic is surveys become important. The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed a country had to be properly known before it could be effectively administered. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map an entire country. In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality,
the flora, the fauna, the local histories, and cropping pattern. All the facts seen as necessary to know about the administrator. The reason. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. This prepared details records of the numbers of people in all the provinces of India, noting information on castes, religions, and occupation. There are many other surveys: botanical surveys, geological survey, archaeological survey, anthropological survey, forest survey. सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उसकी सही ढंग से जानकारी होनी चाहिए। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का भी पता लगाया गया। अंग्रेजों की राय में इसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों की आवश्यकता होती थी। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का जो या अभिलेख था या रिकॉर्ड्स था उसे तैयार किया जाता था। बच्चों, उम्मीद है आज के टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।